Board exams for grade 10th are not happening, and for grade 12th they have been postponed. Now for DU-LLB, I feel the exam might be conducted in August. Now why do I say so? I will cover the same in this video. Hi guys, I am Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. जो बोर्ड ने बोला है, ये बोला है कि वो 15 डे नोटिस देंगे. 12th के एग्जाम्स को उन्होंने ऑलरेडी डिले कर दिया है, जो होने वाले थे फ्रॉम 1st ऑफ मई टू 15th ऑफ जून. नाउ दे हैव डिलेड दीज एग्जाम्स एंड दे हैव सेड कि अब जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा बोर्ड एग्जाम्स का, सो दे विल गिव अ प्रायर 15 डे नोटिस बिफोर डिक्लेयरिंग व्हेन द एग्जाम्स विल गेट कंडक्टेड. उससे 15 दिन पहले वो आपको ऑलरेडी बता देंगे. नाउ कंसिडरिंग दिस, इफ वी स्पेक्यूलेट दैट इफ 15 जून तक एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने वाले थे, now what if they start around 1st of July? That is the minimum time period I am taking into consideration, because 15 day notice period already they have mentioned. So if they will start the exams on 1st of July, they will wind up by mid of July or even later than that. एंड जब 12th के बोर्ड्स ख़त्म होंगे तभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन प्रोसेस का नोटिफिकेशन लाएगी. सो दिस विल ऑल टेक टाइम. सो जुलाई, द होल ऑफ जुलाई विल गो इन दिस. एंड इफ we consider DU-LLB exam, which is a PG course as per DU, so that will most probably, the date जो हमारी पड़ेगी उस एग्ज़ाम के लिए वो पड़ेगी अगस्त में. एंड अगस्त is also on this assumption, on this belief that जुलाई में बोर्ड्स वाइंड अप हो जाएंगे एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम यूजी नोटिफिकेशंस विल बी आउट. सो अगर हम अगस्त की डेट लगा के चलते हैं, देन वी हैव what all months do we have? We are sitting on 15th of April, so 15 days of April we have. Then next we have the whole month of May. जून हमारे पास पूरा है, जुलाई हमारे पास पूरा है, 3 महीने ये हो गए, 15 दिन और. सो अप्रॉक्सीमेटली 100 days we have for our preparation. Now for those people who thought that they have, they are late in preparation for DU-LLB, then you have ample time. 100 days is a lot. 100 days में आप scratch से भी start करके prepare कर सकते हैं, and there's a lot of time to study. So just in case you thought that आपकी वो opportunity miss out हो गई है, then I would advise कि आप preparation start करें जल्द से जल्द and get hold of the whole syllabus. There are multiple plethora of videos ऑलरेडी अवेलेबल ऑन माई चैनल जहाँ पे मैंने बात करी हुई है DU-LLB की, क्या सिलेबस है, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. नाउ स्पीकिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, अगर हम देखें तो इस एग्ज़ाम में आपके 5 सेक्शंस हैं: लीगल, जीके एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग दैट इज़, एंड मैथ्स. नाउ एज फार एज मैथ्स इज कंसर्नड, आई हैव ऑलवेज सेड दैट मैथ्स की वेटेज जो है वो DU में कम होती जा रही है ओवर द ईयर्स. जो पैटर्न देखा जा रहा है, पैटर्न की बात करें, देर इज़ अ वीडियो ऑफ माइन ऑन DU-LLB पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस. वो ज़रूर देखिए, पास्ट ईयर पेपर्स उठाइए, पूरा एनालिसिस कीजिए कि क्या पेपर है, क्या टॉपिक्स हैं एंड कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देन उसके हिसाब से अपना प्रेपरेशन चार्ट बनाइए. अगर लीगल की बात करें तो आई हैव ऑलवेज टाइम एंड अगेन सेड दैट even though self-guide books are there, but those books are not enough when we are speaking of DU-LLB particularly, because DU-LLB में जिस तरह के questions पूछे जाते हैं, if you pick up 2019-20 का paper, then those questions are not even properly covered by these books. So what I'd say is that अभी आपके पास 100 days का time है, थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, multiple resources collect कीजिए, study from multiple resources, get hold of the topics that you need to do. उसके लिए notes को refer कीजिए, articles, blogs वगैरह पढ़िए. जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे, your horizon will broaden that much. And speaking of notes, we already have our modules available on our website www.lawdigest.in, which I time and again tell you about. Links जो हैं उसके वो description में already given है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं. That module will definitely work as a supplement towards your preparation. Then speaking of GK and current affairs, now GK mostly static GK लोग Lucent से cover करते हैं जब बहुत टाइम होता है लोगों के पास. इफ़ यू फील दैट आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है एंड आपकी मेमोराइजिंग स्पीड अच्छी है, यू कैन गो फॉर लूसेंट. इफ़ नॉट, देन जो यूनिवर्सल या सिंघल या अरिहंत,
कोई भी आपके पास सेल्फ गाइड है, फॉर मी ऑल दी सेल्फ गाइड्स आर द सेम जब हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं. सो अगर हम ये देखें कि स्टैटिक जीके हमें कवर करना है तो आप इन सेल्फ गाइड में से स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं. लूसेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक बुक है, मोटी बुक है एंड टाइम लग सकता है उससे करने में, तो यू कैन डू स्टैटिक जीके फ्रॉम योर सेल्फ गाइड. देन फॉर करंट अफेयर्स गेट होल्ड ऑफ प्रीवियस मंथ्स न्यूज़पेपर, पूरा डेटा कंपाइल कीजिए एक जगह, स्टार्ट मेकिंग नोट्स, मंथली नोट्स बनाइए. इट मे हैपन कि आपको लगे कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है, देन व्हाट यू कैन डू इज़ देयर आर वेरी मैनी मॉड्यूल्स दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन. वी ऑल्सो हैव अ मॉड्यूल फॉर करंट अफेयर्स, यू कैन चेक द सेम. देन इंग्लिश, स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश, सी अब हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए एंड यू माइट बी यू नो एट होम, कर्फ्यू जगह जगह लग ही रहा है. सो इंग्लिश के लिए आई वुड से जो आप ये थोड़ा सा आपको लेजर टाइम मिलेगा बीच में, बिकॉज लॉकडाउन में पीपल आर एट होम, दे टेंड टू गेट अ लिटिल रिलैक्स्ड एंड कॉम्प्लिसेंट. तो जो आपका लेजर टाइम है आप ट्राई कीजिए कि उसमें आप अपनी इंग्लिश को किसी तरह से अच्छा कर सके, थोड़ा सप्लीमेंट कर सके. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में. तो इंग्लिश के लिए आई वुड से कि अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो आपकी बुक्स हैं ग्रामर के लिए, रेन एंड मार्टिन, आप उससे अपनी ग्रामर इम्प्रूव कर सकते हैं. देन आरसीज के लिए आप पास्ट ईयर पेपर्स उठाइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए. इंटरनेट पे बहुत आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस मिल जाएंगे, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर. क्लैट का अगर आपको मटेरियल कहीं से मिल जाता है तो वहाँ से भी आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन फॉर इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं. देन वोकेबलरी के लिए आप न्यूज़पेपर्स ऑलरेडी पढ़ेंगे एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम यू कैन गेट होल्ड ऑफ डिफरेंट वोकेबलरी बुक्स जहाँ से आप अपनी वोकेबलरी प्रैक्टिस कर सकते हैं. देन एज आई वॉज सेइंग कि लॉकडाउन में सिंस आपके पास टाइम होगा, लेजर टाइम होगा, सो ट्राई वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़. अगर आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं तो ट्राई वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़. घर में जो लोग हैं उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए. अगर आप डेलिबरेटली स्टेप्स लेंगे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, देन आई एम श्योर दिस माइट हेल्प यू. एंड ये अच्छा पीरियड है आपके लिए अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को इन्हांस करने का. तो इसका पूरा अच्छे से फ़ायदा उठाइए. लास्ट कोविड पीरियड में वी सॉ दैट अ लॉट ऑफ पीपल टुक different challenges and you know everybody was into self growth क्योंकि बाहर जा नहीं सकते थे. so everybody was trying to focus on themselves. तो ये जो सेकेंड वेव है इसमें भी आप सेम ही चीज़ करिए एंड ऑब्वियसली कीप सम लेजर टाइम फॉर यू. थोड़ा आप अपने लिए टाइम भी निकाल सकते हैं टू रिफ्रेश योर सेल्फ. देन स्पीकिंग ऑफ अनदर सेक्शन दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर्स में डिफरेंट क्विजेज, पजल्स वगैरह आती हैं. ट्राई टू सॉल्व दोज, ट्राई टू सॉल्व सुडोकू. एंड अगर टेक्स्ट बुक की बात करें देन आर.एस. अग्रवाल इज़ अ बुक जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर लॉजिकल रीजनिंग. बिकॉज ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा अभी टाइम है एंड अगर आपको लग रहा है कि अभी जो पुराने सेक्शन लीगल करंट अफेयर्स में ही अगर आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है देन नो हार्म. इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप आर.एस. अग्रवाल से ही क्वेश्चन सॉल्व करें. देन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन पिक अप पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चंस एंड अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस उठाइए. प्रैक्टिस एज मेनी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस एज यू कैन. बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट से भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे. देन स्पीकिंग ऑफ टेस्ट, हमारे वेबसाइट पे भी मॉक टेस्ट हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं. DULLB के 6 मॉक टेस्ट आर ऑलरेडी देयर. देयर विल बी अ टोटल ऑफ 10 मॉक टेस्ट दैट विल बी अपलोडेड. 4 आर येट टू गो बिकॉज आई वॉज वेटिंग कि जो अब आगे आने वाले जो मंथ्स हैं उनकी करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएं, इसलिए वो 4 मॉक टेस्ट अभी लाइव नहीं हुए हैं. सो यू कैन कीप गिविंग टेस्ट ऑल्सो टू चेक योर सेल्फ. Probably you can when you reach July and if you start your preparation now then you can test yourself through different mock tests. You can give as many as you like. There is no limit to giving tests. So और जो लोग ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं आई होप दे आर ऑलरेडी इन द स्टेज ऑफ गिविंग टेस्ट एंड दे आर चेकिंग देमसेल्व्स कि कहाँ पे उनकी प्रेपरेशन कम है एंड जहाँ पे यू आर एबल टू फिगर आउट दैट यू आर लैगिंग बिहाइंड, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन कवर अप फॉर द सेम एंड फिर से मॉक टेस्ट दीजिए, रीटेस्ट दीजिए, सेम टेस्ट को आप बार बार भी दीजिए. उससे आपको ये पता लगता रहेगा कि किस तरह से आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है. एंड स्पीकिंग ऑफ मैथ्स के लिए एज आई सेड अर्लियर कि वेटेज बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह में घुसने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपली पास्ट ईयर पेपर्स उठाइए एंड बेसिक जो एरियाज़ हैं मैथ्स के उनमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए.
So this was on the whole the strategy that I wanted to discuss with you. Now in case you want कि हम डिटेल में सब कुछ डिस्कस करें, पूरा ब्रेक डाउन करें इस एग्ज़ाम को, देन वी कैन हैव अ सेपरेट वीडियो वेयर वी कैन डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स. जो भी आपको लगता है, आपका जो फीडबैक है, जो आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. लीव योर डाउट्स एंड क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें. ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. वी आर कमिंग आउट विद a lot of stuff on our Instagram handle which will help you in boosting your preparation as well as attaining some extra legal knowledge. एंड जहाँ तक एग्ज़ाम्स की बात है, आप जो फॉर्म के लिए अभी वेट चल रहा है स्टूडेंट्स का, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कीप आस्किंग कि फॉर्म्स कब आउट होंगे, उसके लिए यू कीप अ ट्रैक ऑफ द DU ऑफिशियल वेबसाइट. www.du.ac.in ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है. इस पे आप ट्रैक रखिए. द फॉर्म्स विल बी अपलोडेड हेयर. डू नॉट, देर इज़ नो नीड टू रिलाई ऑन डिफरेंट पोर्टल्स. ये जो आई वोंट नेम देम, जो इंटरनेट पे आप गूगल सर्च में जब डालते हैं DU-LLB फॉर्म्स, तो जो ये पोर्टल्स आते हैं, रैंडम पोर्टल्स हैं ये, आप इन पे रिलाई मत कीजिए. ओनली रिलाई ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट. दीज पोर्टल्स आर जनरली to give you a tentative month or information, and sometimes it's pretty old also, so you need not rely on these portals. Rely on the official website only. And as far as other exams are concerned, other 3-year LLB exams are concerned, if you're preparing for them, BHU, MHCT, etc., then उनके लिए भी expect कीजिए कि exam is going to get delayed. Since DU has a little laid back attitude, तो उसका exam most probably August में हो सकता है. अदर एग्ज़ाम्स जो हैं हो सकता है कि वो जुलाई तक हो जाए. सो कीप योर प्रेपरेशन इन सच अ मैनर दैट कि अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्जाम्स, देन यू आर वेल प्रिपेयर्ड बाय द एंड ऑफ जून. आप ट्राई कीजिए कि जून तक आपकी प्रेपरेशन अच्छे से हो जाए. नाउ जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. कुछ हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन अपना बहुत पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, they can use this time to revise. Then there are students who are in midway of their preparation. What they can do is they can use this time to cover the rest of the things and also save some time for revision. Then there are people जो अब start करेंगे and who have been wondering whether they should prepare for this entrance or not. They should also start right now, because don't wait for anything. You need to take a stand for yourself, take charge of the career in your hands, and you can start preparing now as well. Don't wait कि अगर हमारा टाइम निकल गया है, we won't be able to prepare. Don't think that. and अभी टाइम है बहुत. एटलीस्ट इस 2021 एग्ज़ाम के लिए यू शुड सिट, एंड बिलीव मी 3 months बहुत टाइम होता है प्रेपरेशन के लिए. सो इफ़ यू गेट डिटर्मिन्ड कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है, इफ़ यू गेट डिटर्मिन्ड टू गिव दिस एग्ज़ाम, देन who knows, you might end up clearing this exam. So with this I end this video. As I mentioned earlier, कोई भी आपको अगर query या doubts हैं, then you can get back to me. I'm available on different social media platforms. जो links हैं वो already description of this video में given है.